Hi friends, I'm Hriday Ranjan, English language trainer and life lesson coach. आज हम डिस्कस करेंगे prepositions, and these prepositions are very important part of English language, and this is one of the part of the speech. So preposition as such, if I want to define, अगर इसको definition दें तो इसका सटीक definition है नहीं, okay? So whatever I give, it is not sufficient or incomplete because it needs a very big literature to tell what is a preposition. So preposition as such, if I go short in a brief, अगर थोड़े में बताएं तो ये है a preposition is a word or a group of words. या तो ये word है या group of word है, placed before a noun or pronoun to relate two elements of a sentence, okay. Now these prepositions are one word. If it is one word, it is called preposition. There is nothing else called, as no name for that, but actually these are the prepositions which are one word, okay. Now, okay, I told you about the prepositions, that is it has one word, or prepositions that is has one word, and suppose there are 56 prepositions and complex prepositions. So these complex prepositions are combination more than one word. एक combination है, एक से या दो word होंगे तो वो preposition कहेंगे. Complex preposition होता है, compound prepositions होता है, and there are prepositional phrases. We are not going that long, itna dur we are not going that, okay. So in complex prepositions, apart from, behind, ahead of, out of, these are complex prepositions. So see prepositions, but we will consider today, आज के विषय में हम लोग सिर्फ इतना सीखेंगे कि prepositional words होते क्या हैं, okay. So preposition in, add, down, in, to get all to the total, there are 56 prepositions. Now these prepositions are an important part of language. 56. These 56 prepositions, they combine together with other words and make really English language from swimming pool to a big ocean. ये prepositions जो है ये दूसरे शब्दों के साथ मिलकर ये चाय की प्याली से समंदर बन जाता है. So लेकिन आज हम डिटेल लिटरेचर पर नहीं जा रहे हैं. आज हम आपको मेरा टारगेट आज क्या है, आज का टारगेट आपका क्या है? आज का टारगेट है आपको 56 prepositions को सीखना है, ओके. इन these 56 prepositions, now ये बोले 56, I am telling you 56, somebody will say 60, okay, he is also right or she is also right. So from 50 to 67 one word prepositions are there. So one word prepositions can span between, or the spectrum can go from 50 to 67, even 70. Okay, take it. Now I have chosen some of the best used prepositions, and they are the most important one, which has no controversy with others. That means it is clear that scholars won't disagree. Mainly 56 होते हैं, 57 होते हैं, एक नंबर हमने लिया है 56. Okay, let us see these prepositions. So ये prepositions is a very important part. ये इतना important है कि ये word एक डाल देते हैं, parts of speech है ये, okay. ये parts of speech है और एक word ये बहुत सारा हो जाता है, जैसे go through, okay, go through, look after क्या है preposition, okay. Now go through क्या है preposition. और ये इतने shades बनाते हैं दूसरे words के साथ मिलकर कि ये सीखना मुझे कहना नहीं चाहिए, दुभर हो जाता है. इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. प्रीपोजिशनल्स, इसके प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बुक्स आते हैं, उसके मीनिंग्स आते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल. नाउ
see what is the difficulty of the students. The students, they what they do is that the problem is that कि वो पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं. नहीं, आप डिटेल में नहीं समझिए, कुछ सरफेसली सब चीज़ सब थोड़ा टेंसेस कभी कंप्लीट नहीं होगा, प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, बट यू विल इम्प्रूव डे बाय डे. ओके, आपका इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होता रहेगा, बट इट मीन्स पूरा कसम खा के मत बैठिए कि आज मैं कंप्लीट कर लूँगा ये. नथिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल इन 3 months or 4 months, because grammar is full of headings, then subheadings, इतने सारे डिटेल्स होता है. इवन द ग्रामर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. ग्रामर करते हैं, ओके ग्रामर सीखिए, बट एक्चुअली वोकैबुलरी मोर इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, बिकॉज आई थिंक आफ्टर ऑल यू हैव टू ट्रांसलेशन सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो टुडेज वी शुड नॉट deviate ourselves. We should concentrate on prepositions, and here we go. So here's the list of all those 56 prepositions. Let us see what are they. So here is the 56 prepositions, the list of 56 most important prepositions, because they segregate themselves aside as a clear prepositions. Okay, there is what happens that there is a lot of confusion whether this is preposition or not. ये preposition का list बहुत important है, मैं बता रहा हूँ, for the exam, for competitive examinations और दूसरे चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि preposition word क्या है, ये preposition है या नहीं है. Like question आता है fill in with correct preposition. So this correct preposition में आप क्या करेंगे? Now you don't know that toward is a preposition, with is a preposition, amongst is a preposition. तो अगर आपको पता नहीं होगा कि preposition क्या है, तो फिर how you will be able to fill in the blanks or correct the things or try to compare with that. And now 56 prepositions है, preposition इससे complete नहीं होता है. ये है आपको एक लिस्ट देना कि ये वर्ड्स प्रीपोजिशन है, इसको छोड़कर कोई वर्ड्स प्रीपोजिशन नहीं है. लेकिन यहाँ पर रेड में बहुत सारा लिखा हुआ है. मैंने पहले भी बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, और ऐसे जाएंगे तो फिर अनगिनत है. लेकिन वन वर्ड जो होता है वो एक लिस्ट को मैंने तैयार किया है, एक गाइडलाइन लिस्ट है. एंड दिस इज वेरी, मैं बताऊंगा, रेयर है. आप खोजिए, बहुत तरह के मिल जाएंगे लिस्ट आपको, किसी में 30 मिलेगा, किसी के 40 मिलेगा. ओके, सो बट दिस इज द मोस्ट चोजन वन. मैंने आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया, ये ऐसे नहीं लिख के दिया. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसे लिख के रखते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख के रखिए, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बुढ़ापे तक काम आता है. लेकिन आपको सारे वर्ड्स को अलग अलग सीखने होंगे. यहाँ जो आप देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपको, इट विल बी ईजियर. ओके, सो आई विल रीड दीज prepositions फॉर यू. नाउ लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज above. ओके, among, against, below, beyond, beneath, underneath, till, until, outside, into, during, per, via, about, cross, across. Okay, across मत बोलिए, across. Okay, about नहीं बोलिए, about. Okay, across, about, across, after, along, amid, amidst, towards, amongst, at, besides, beside, for, round, on, to, by, from, off. दो ऑफ है, देखिए आप, डबल एफ वाला भी है और सिंगल एफ वाला भी है. ओके, उसका मीनिंग आई विल टेल यू लेटर ऑन. ऑफ, इनटू, थ्रू आउट, अपॉन, अंडर, onto, toward, with, minus, despite, in, off, within, behind, between, down, inside, through, over, than,
up, without, like, upon. Okay, now you see here some condition. If I add one a is also a prepositions, like a is an article, but sometimes it is used as preposition. I have used, now this is the list, okay, of that. Now I think in this one got repeated here, I should add of, it should be a single digit a. All right, so here goes the, I have already read it out. Okay, upon, towards, within, behind, between, down, inside, through, over, than. 52 में than, देखिए ध्यान दीजिए इधर. Okay, now upon, without, like. Okay, now let's see that the differences. यहाँ पर हम देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टुवार्ड है ना, और टुवार्ड्स भी है. दो वर्ड्स है, टुवार्ड और टुवार्ड्स. दोनों में क्या अंतर है? देयर इज नो डिफरेंस. नो डिफरेंस बिटवीन टुवार्ड. लाइक ही हर्ल्ड अ स्टोन टुवार्ड्स मी. उसने एक पत्थर मेरी तरफ उछाल दिया. हर्ल अ स्टोन, हर्ल. ओके, ही, और थ्रू अ स्टोन टुवार्ड्स मी, और ही थ्रू अ स्टोन टुवार्ड मी. एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक. वैसे एमंग, एमंगस्ट. एमंगस्ट क्या होता है? ये ओल्ड इंग्लिश है, आर्केइक यानी पुरातन इंग्लिश है. ठीक है, वो चलता है. पुरातन इंग्लिश, इट ब्रिंग्स अ न्यू ब्यूटी. अच्छा, एक सुंदरता लाती है. ओके, पुरातन चीज बहुत अच्छा लगता है, जैसे पुरातन शब्द हो जाते हैं, तो वो वैसे है एमंगस्ट. ओके, सो देयर वाज अ बॉय. So let's take the example like there is a house amongst this tree. Among the tree भी होगा, amongst the tree भी होगा. Okay, no mistake. There is no need. Now let's say towards is same, and it is not. Now I have given you an important thing. ये बात आप पर है कि आप इसको इम्पोर्टेंट लेते हैं कि नहीं, बट यू नॉट फाइंड दिस इज वेरी हार्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट बिकॉज देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अमॉन्ग द स्कॉलर्स. विद्वानों में ही थोड़ा सा उनमें ये रहता है. तो आप सिर्फ लिस्ट सीख लें आज, और इसका वर्ड को आपको एक एक करके सीखना होगा. ओवर का यूज़ क्या होता है, इनसाइड का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, आउटसाइड क्या होगा, थ्रू कैसे होगा, ओके, देन का यूज कब होगा, एंड देर आर सेवरल, अबव, अक्रॉस, बियॉन्ड, ऑल दीज थिंग्स, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट. नाउ आई विल टेक समथिंग फ्रॉम दिस जस्ट फॉर, कुछ तो आपको इजी लगते होंगे, कुछ हार्ड लगते होंगे. कौन सा हार्ड लगेगा, लेट अस सी. ओके, अक्रॉस. अक्रॉस मतलब आर पार. ओके, ही रैन अक्रॉस द फील्ड. ओके, आर पार वो दौड़ गया. ही रैन अक्रॉस द फील्ड. बियॉन्ड मतलब होता है के परे. डोंट गो बियॉन्ड दैट लाइन. ओके, डोंट गो बियॉन्ड दैट लाइन. सो बियॉन्ड होता उसके परे. नाउ एक चीज मैं बताता हूं, एलॉन्ग. एलॉन्ग, एलॉन्ग का मतलब क्या होता है, ये पूरा लिटरेचर नहीं बता रहा हूं, अलग अलग आपको पूरा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा. ऑलराइट, सो along का क्या होता है? along होता है के साथ. she came along with her father. she came along with her father, के साथ. लेकिन along का एक मैं आज सीक्रेट बताता हूँ जो किसी बुक में नहीं लिखा हुआ. along मतलब होता है किसी लंबे चीज को फॉलो करना. जैसे रोड है, लंबा है, ओके, उसको फॉलो करना along होता है. ओके, सो द रोड, या फिर कोई भी है विच इज लाइक I was walking along the river. रिवर लंबा सा होता है, रिबन जैसा. I was walking यानी एक तरफ जाना, along कहते हैं. I was walking along the river. So the petroleum pipelines runs along the railway track. यानी रेलवे ट्रैक भी लंबा है और पेट्रोलियम पाइप भी लंबा है. ठीक है, अब ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, तब along का यूज होगा. ठीक है,
तो वो तो नियर बोल देंगे ना, ऐसे नहीं बोलना है कि जो नियर, नियर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, ऑलराइट। सो वो नहीं, अलोंग होगा अगर कोई लंबा वस्तु है उसमें लेंथ है तब आप यूज करेंगे उसको। रेलवे ट्रैक, ओके, द पेट्रोलियम पाइपलाइन रन्स अलोंग द रेलवे ट्रैक, ओके। सो दे वेर जॉगिंग along the, suppose the railway track line, jogging along, I was walking along the hedges, if hedges are arranged in a linear manner, so in that way we can। now suppose जैसे बिजली का लाइन है, ओके, द और उसके साथ केबल लाइन भी जाता है कभी कभी, आप मेस में जो ऊपर पूरा इलेक्ट्रिसिटी का रहता है। सो द केबल लाइन रन्स अलोंग द मेन सप्लाई लाइन, ओके, रन्स अलोंग द सेम सप्लाई लाइन, ओके। ऐसे भी होता है कम अलोंग, खत्म हो गया, ओके, कम अलोंग। तो ये था अलोंग का यूज। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, इसमें से कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इजी है, और लेट मी सिंग, कौन सा चाहिए आपको बताइए, उसका डिटेल में बताऊंगा। आप जैसे अलोंग में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी लंबे चीज में, ओके, ठीक है। लाइक हियर आई हैव रिटन सम मोर प्रीपोजिशंस, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने और प्रीपोजिशंस डाले हैं, जैसे एक्सेप्ट, पेंडिंग, वर्थ, नियर, लाइक, बेयरिंग, ओके। I have used these prepositions, these are prepositions, but these prepositions are either adjective और verb। कभी कभी verb और adjective preposition के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप सारे वर्ड्स देखेंगे कि सिंगल वर्ड है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं। ऐसे तो बहुत लंबा लाइन हो जाएगा, एंडलेस हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपका मेन चीज छूट जाएगा। जैसे ही आप अनंत को फॉलो करेंगे आप पहुंचेंगे ही नहीं कहीं। आप कहां तक पहुंचे, हाँ इतना 56 याद हो गया, फाइन, ओके, कुछ तो हुआ, दैट्स इट, ओके। कसम मत खाइए कि पूरा कर लेंगे, ओके। एक बोरी, ऐसे नहीं कि एक बोरी चावल आप एक दिन में खा लेंगे, नहीं कीजिए ऐसा, पार्ट बाय पार्ट लर्न कीजिए, आप बेटर टू बेटर होते रहेंगे, ऑलराइट। सो हियर नाउ वी हैव दैट, लेट मी क्रॉस अबाउट आफ्टर, बिफोर तो पता ही होगा, वी केम बिफोर। amongst का भी सेम है, ओके। नाउ which one you feel behind, he was behind, he was hiding behind, okay। by, okay, I came by train, okay, मैं ट्रेन से आया, क्या होगा, I came by train। of, he died of malaria होता है, याद रखिएगा, he died from malaria नहीं होता है, he died from of malaria, ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कोलेरा, ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, तो अगेंस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विरुद्ध में कोई वार आपने डाल दिया, ना। अगेंस्ट का मतलब होता है जब आप जैसे डोंट, ही कंप्लेंट अगेंस्ट द, ही कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिसर, ओके, अगेंस्ट। नाउ द, अगर आप दीवार के सहारे कुछ खड़ा रखे हैं जैसे सीढ़ी को, ओके, द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, जो सीढ़ी है वो उस पे है। डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, जैसे पीठ टिका के हम लोग खड़े रहते हैं ना, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल और डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। तो अगेंस्ट का यूज होगा, अगेंस्ट मतलब हमेशा अपोजिट है, ऐसे नहीं, अगेंस्ट ऐसे भी दे ब्रिंग द मीनिंग, ओके। ओवर, थ्रू, इनसाइड, नाउ, beneath, underneath, underneath, beneath, like beneath, underneath, under, इसमें एक का बहुत कंफ्यूजन है, ओके। नाउ beneath means if it is for according to me, गाइडलाइन दे रहा हूँ, ऑल राइट, वो कसम खा के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई एम गिविंग यू गाइड। beneath means अगर दबा हुआ रहेगा तो beneath होगा, अगर देख पा रहे हैं तो फिर वो जनरली अंडर होता है। जैसे द बॉल इज अंडर टेबल, तो आपको ऐसे अंदर से दिख जाएगा कि वो बॉल उसमें है, ओके। एंड अगर दिखता नहीं है और वो बहुत क्लोज स्पेस में है तो वो, जैसे बॉल रोल्ड अंडरनीथ द कार,
वह घुसना बड़ा मुश्किल होता है. ओके, नाउ बीनीथ, आई कीप माई फ्लैश लाइट बीनीथ माई पिलो. अंडर यूज करते हैं, मैं भी बोल दिया. ओके, बीनीथ माई पिलो, मूव कर. ही, माई ग्रैंड मदर कीप्स हर कीज बीनीथ हर पिलो एंड आई कैन फील द ग्रास बीनीथ माई फीट. क्योंकि दबा हुआ है ना, ब्रीथ. अंडर होगा तो खाली जगह होगा थोड़ा सा. ओके, स्पेस होगा. ओके, द चाइल्ड इज हाइडिंग अंडर द टेबल. ओके, अंडर द कॉट, या ये होगा. बिहाइंड तो आप जानते हैं पीछे से. ही केम फ्रॉम बिहाइंड. फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम भी है और बिहाइंड भी है. ओके, अब इसका बताइए. तो मलेरिया के लिए एक इंजेक्शन है. देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट मलेरिया, अगेंस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. नाउ यू within, मतलब किधर, you stay within my sight. Have you understood? You stay within my sight. And आप इसको एक बार रट लें. एंड आई थिंक आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस में लिटरेचर चाहिए. सब में एक अलग लिटरेचर होगा सबका. यानी 56 प्रीपोजिशंस जो मैंने दिया, एक नंबर है, गाइडलाइन नंबर 56. तो उसका सारा का अपना अपना लिटरेचर है, मतलब कि उसका डेफिनेशंस है. तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा हार्ड प्रीपोजिशन है जिसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. बिटवीन एंड अमॉन्ग डिफरेंस है. आप दूसरे सोर्सेज का भी सहारा लीजिए, ऐसा नहीं. यू टेक द यूज़ ऑफ दैट. एंड प्रीपोजिशंस को ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे फ्रेजल वर्ब बनता है, याद रखिएगा. फिर बाद में कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम होगा. स्पोकन में तो प्रॉब्लम होगा, यू विल नॉट बी एबल टू. कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीपोजिशन एटलीस्ट 11-12 मार्क्स का आता है, मैंने देखा है. ओके, सो ये प्रीपोजिशंस को आप अच्छे से कर लें. एंड these are the very special list. And that was, I think, I have made things clear today. That is the list of preposition and some meaning. I think this will be helpful for you. Okay, I am Hriday Ranjan, your English language trainer. आप थोड़ा सा गुरुजी का बात मानिए और इसको याद कर लीजिए, बिकॉज फिर आपको नहीं आएगा कि ये प्रीपोजिशन वर्ड है या नहीं है. ओके, तो ऑल फॉर टुडे. डू ड्रॉप सम कमेंट्स, मुझे अच्छा लगेगा. ओके, अच्छा लिखिए, मीठा मीठा बोलिए मेरे को. ओके, एंड बाय.